continue this series with the further sections, and the next very section is our section 80E. Now, E stands for here, you can say ki for education, you can learn it like this. So here this section is available, the deduction under this section is available for your individuals. And what is the benefit under this section? That is, in case you take any loan for your higher education, the SSC can take the loan for his own education, for the education of his spouse or his children or any other person for whom he is a legal guardian. Right. So if he has taken any loan for the higher education, I repeat, the education has to be for the higher purposes. For example, you are taking an education loan for your masters, for your you could say PhD. In that case, whatever be the amount of interest that you pay on to such loan, that will be allowed as a deduction. So जितना भी आपका amount है interest का, वो आपको as deduction मिलेगा under section 80E. Now, amount of interest का deduction कब तक मिलेगा? Usually it says you can get the amount of your 80E का जितना भी amount है आपका, जितना आपने interest का amount दिया है, for a maximum of your 8 years. यानी कि जिस साल से अपने interest pay off करना शुरू करा है original amount of your principal या loan के ऊपर, उस साल से लेकर plus उसमें 7 years आप add कर दीजिए. That means your total of 8 years के लिए you can avail the deduction for the interest that you pay off onto the loan that you have taken up for the higher education purposes. But it also says that either that is the case or till the entire period for which the interest is your repaid. यानी कि वो पूरा time period, पूरा timeline, जब तक आपका interest जो है repay नहीं होता है, तब तक जो है आप जो है ये benefit उठा सकते हैं, whichever comes the earlier. Either that the initial year plus the 7 years, that makes a total of your 8 years, or for the time period for which your entire interest is repaid. So जितना भी आपका interest का पैसा होगा, लोन के अमाउंट के लिए नहीं, आपको interest के अमाउंट के लिए जो है ये डिडक्शन मिलेगा. यानी कि जितना भी पैसा आप किसी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रूव्ड वन आपने अगर लोन लिया है, लोन हायर एजुकेशन के लिए है, और उसके ऊपर जितना भी आप इंटरेस्ट का पैसा देंगे वो आपको जो है एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E आपको अवेलेबल होगा. कोई अपर लिमिट नहीं है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है कितना नहीं है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन टू जितना आपने लोन लिया है उस बैंक से, उस टाइम पे क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसके अकॉर्डिंगली आपने कितना इंटरेस्ट पे ऑफ करा, उसके ऊपर आपका जो है वो डिपेंड करता है. सो जितना भी आपका अमाउंट होगा इंटरेस्ट का, दैट विल बी अवेलेबल एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E. नाउ इसी का फर्दर आगे हम लेकर चलते हैं. नेक्स्ट इज योर सेक्शन 80EE. नाउ 80EE अगेन the benefit is available only to the individuals. ये benefit सिर्फ individuals को, ना किसी HUF को है, ना ही कंपनी के केस तक तो जाते नहीं. हमने जितने भी अभी तक sections देखे हैं उसमें हमने देखा either the benefit is available to your HUF और इंडिविजुअल को तो हर एक केस में दिस बेनिफिट इज अवेलेबल, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट these benefits are not available to any other person as defined under your Income Tax Act 1961. Now इंडिविजुअल को ये आपका जो सेक्शन 80EE है, इसका बेनिफिट आपको अवेलेबल है. और बेनिफिट किस चीज के लिए? कि अगर आपने लोन लिया है, उस लोन, और लोन को लिया किसके लिए? आपने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए. सो एनी लोन दैट यू हैव टेकन टू बाय अ प्रॉपर्टी, अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर योर ओन पर्पस, राइट, एंड उसके ऊपर जितना आपने इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, that will be available as a deduction. Now when we talk about this section 80EE, ये 80EE अब आपका जो है applicable नहीं है. Reason being what? ये जो deduction जो था आपका, ये available था financial year 17-18 में. यानी कि अगर आपने let's say कि कोई भी लोन लिया हो 16-17 में, तो उसके लिए you could have taken the deduction under section 80EE. But इस section को आगे extend कर दिया गया है 80EE के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे. सो 80EE में क्या होता था कि अगर आपकी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो 50 लाख से कम है, और अगर जो आपने होम लोन लिया है उसका अमाउंट भी आपका 35 लाख से कम है, देन यू कुड हैव क्लेम फॉर द डिडक्शन अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 80EE के अंदर. और डिडक्शन आपको कितना मिलता था?
जितना आपका अमाउंट था इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, या आपका जो 50,000 रुपीज, राइट। सो जो भी आपका मिनिमम होगा वो आपको अवेलेबल था एज अ डिडक्शन. Now always remember when we talk about these interest on loan for house property, ये जो interest on loan on your house property, it is available over and above your section 24B. यानी कि कौन सा, इफ यू रिमेंबर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी. दैट डिडक्शन वाज फॉर व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बाइंग अ हाउस प्रॉपर्टी. तो आपको वहां 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, राइट, हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में. सो ये जो सेक्शन आपको इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है डिडक्शन के तौर पर, ये ओवर एंड अबव है. यानी कि आप 24B में 2 लाख रुपीस तक का लोन का जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो आप लेते थे, वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 24B में. और जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है उसके लिए आप जो है सेक्शन 80EE, अगर वो 17-18 या 16-17 अगर आपको फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने लोन लिया है अगर उससे पर्टेन करता है तो 80EE. और अगर आगे अपकमिंग से जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपने कोई भी हाउस लोन लिया है और जो लोन है वो इंडिविजुअल ने लिया है एंड ही हैज टेकन द लोन फॉर योर प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है उसने. एंड यू नो व्हेन वन थिंग अनदर दैट इज टू बी नोटेड इज कि जब हम 80EE की बात कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी सेक्शन 80E में बेनिफिट या 80EE में जो है वो बेनिफिट अवेल नहीं किया होना चाहिए. दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आपने ऑलरेडी 16-17 में 80EE के अंदर आपने लोन लिया है और उस लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट आपका एक्यूमुलेट हुआ उसको एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE क्लेम करा है, देन यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट अंडर सेक्शन 80EA, right, because you cannot avail for 2 deductions at one time for the single thing. That is what is the prima facie concept of your deduction कि double deduction तो आपकी allowed है ही नहीं, राइट. 80EE का बेनिफिट ले लिया तो EE का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं. नाउ EE से रिलेटेड और भी पॉइंट्स है, जैसे सपोजिंगली आपका ये जो लोन होना चाहिए, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने बाय करी है एंड दैट टू इट इज फॉर द रेजिडेंशियल पर्पसेस. तो अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को खरीदा है, आप वहां पे स्टे करेंगे एंड इट इज योर फर्स्ट वेरी प्रॉपर्टी एंड उस प्रॉपर्टी का जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है यानी कि उसकी जो रजिस्टर्ड वैल्यू है वो 45 लाख रुपीज से कम है, देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट on the loan that you have taken for this particular house property under your section 80EE, right. Now कितना अमाउंट मिलेगा आपको डिडक्शन के तौर पे, हमने कहा कि गवर्नमेंट दिस इनकम टैक्स एक्ट 1961 says that the amount of interest that you pay off onto the loan or your rupees 1,50,000, तो 1.5 लाख रुपए तक, इन दोनों में से जो भी आपको लोअर अमाउंट होगा that will be available as a deduction under section 80EE. इसके अलावा जो है अगर एक्सीड कर रहेगा तो आपको एक्सेस पॉइंट पे जो है जितना भी एक्सेस अमाउंट है आपका उसका आपको डिडक्शन क्लेम नहीं हो सकता. जितना भी विद इन दीज लिमिट्स है आपका, जितना आपने इंटरेस्ट का अमाउंट दिया लोन के ऊपर या रुपीज 1,50,000 रुपीज, सो वट एवर बीइंग द लेस दैट विल बी अवेलेबल एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, राइट. नेक्स्ट सेक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट इज your section 80EB. Now 80EB, when we talk about this benefit is available to your individuals. So this benefit is available to individuals when they take any electric electric vehicle और उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उन्होंने लोन लिया है. So this is a recently introduced concept or recently introduced your section under your income tax act 1961. और ये 1961 में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आपने कुछ भी लोन लिया है और लोन का जो टाइम पीरियड है इट इज बिटवीन योर 1st of April 2019 टू योर March 2023, राइट. सो अगर इस टाइम पीरियड में आपने कुछ भी लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर जितना भी आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, दैट विल बी अवेलेबल एज अ डिडक्शन. एंड डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन हम अगेन सेम पॉइंट, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, जितना आपने पे ऑफ करा है, या फिर रुपीज 1,50,000 जो भी आपका लेस होगा दैट विल बी अवेलेबल एज अ डिडक्शन अंडर योर सेक्शन 80EB.
सो पहली बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मिलेगा, आपको नॉर्मल व्हीकल्स के लिए नहीं मिलेगा। तो आजकल आप देखते हैं गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, that is why the government is sensitizing the people that they should go for these electric vehicles. And if you take a loan to buy these electric vehicles, the government is providing you the additional benefit that whatever be the amount of interest that you pay off onto such loans that you go for these buying of your electric vehicles, so that amount of interest will be given as a deduction to you. So that actually promotes the concept of your electric vehicles. That means the government is saying that go for more and more of your towards the sustainability, promote these electric vehicles, and the benefit with respect to the same will be provided from your gross total income. Now, since we have already discussed about your section 80C, we have discussed the extensions of the same, we have discussed the 80D, and then we have come over to 80E, 80EE, 80EEA and 80EEB. Now the sole intent behind all these deductions is to what? So as to promote the citizens towards the healthy causes, whether we talk with respect to your investments or your savings, whether we talk with respect to promoting the citizens towards that they should go for more and more health insurance premiums, and they should be saved from those contingency expenditures, so that they have if they are paying let's say an amount of annuity towards a health insurance premium, they should not be worried about in case of any calamity, in times of any situation where they are not well and they you could say contract any disease. So that health insurer will take care of that thing, and through this the government is promoting a number of, you could say, these saving schemes, number of investment schemes. And let us suppose whether we take this example of section 80B. So 80EEB is what? It is promoting the people that they should go for more for your electric vehicles, and in this manner the government is saying that if you go for electric vehicles, if you buy a loan, but make sure the loan has to be taken up from a bank or a approved financial institution. It should not be a one taken from a relative, right? So if you are taking a loan from a relative, then the government is not going to provide you with any sort of these deductions, whether we talk with respect to your section 80EE, whether we talk with respect to 80EA or 80EEB. So the loan has to be taken up from an approved financial institution, या फिर आप किसी बैंक से लोन लीजिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंक से लोन लीजिए, तभी आपको जो है इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है एज डिडक्शन आपको मिलेगा. अदरवाइज दैट डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल टू एन असेसी. नाउ व्हाट इज द इंटेंट, चाहे हम इन चैप्टर 6A से लेकर चैप्टर 6A में 80C से 80U तक की बात कर रहे हैं. इंटेंट हियर इज, जैसे कि अभी मेंशन करा कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना 80C के थ्रू. 80C में भी देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वी रिसीव अ नंबर ऑफ क्यूरीज विद रिस्पेक्ट टू कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको, कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस में नहीं. दैट इज टोटली योर कॉल. जो भी आपको लगता है आपका जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट है, बेस्ड ऑन टू द सेम यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जैसे अगर हम रिटर्न्स की बात करें, 80C में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट रिटर्न्स हैं. चाहे हम एक NSE सर्टिफिकेट की बात करें, चाहे हम LIC की बात करें, या फिर लेट अस सपोज सुकन्या समृद्धि योजना है, उनके इंटरेस्ट रेट डिफर करेंगे. सिमिलरली आपके पोस्ट ऑफिस की जो 5 ईयर टर्म डिपॉजिट स्कीम्स हैं, उनके रिटर्न जो हैं वो डिफर करते हैं. या PPF का आप एग्जांपल लीजिए, PPF में जितना भी आपका आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपको पता है कि यू हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 15 years, right? But you get a comparatively or relatively a greater return onto the same. Plus आपको ईयरली डिडक्शन तो मिलेगा ही, but also at the time when you could say your PPF is mature, so जितना भी आपको lump sum amount मिलेगा at the maturity of your PPF, that entire amount is also exempted in the hands of your assessee. That means whatever जितना भी आपका वो lump sum amount होगा, ये 80C का तो डिडक्शन आपको पैरेलली मिलता जाएगा हर साल फाइनेंशियल ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो भी है आपका. प्लस आपको जो है जितना भी लमसम अमाउंट मिला उस PPF के ऊपर, बिकॉज PPF इज ओपन फॉर द जनरल पब्लिक,
तो इट इज गुड टू गो फॉर सच प्रोडक्ट्स. और सिमिलरली आप LIC में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि यू गेट अ गुड रिटर्न एंड प्लस टू यू गेट अ कंपाउंडेड अमाउंट दैट इज टैक्स फ्री एट द टाइम जब उसका मेच्योर होगा प्रोडक्ट. वो मेजरली आपका टैक्स फ्री है, टैक्स एग्जाम्प्टेड है. सिमिलरली अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, nowadays number of insurer are there, number of health insurance products are there which are somehow also linked to your market, which are providing you a better coverage. पहले कुछ लिमिटेड डिजीजेस थी, आजकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में दैट डिजीजेस का जो हम एक्सटेंड देख रहे हैं वो आपका एनहांस हुआ है. नंबर ऑफ डिजीजेस आर कवर्ड इनटू द सेम, plus it provides you a cashless facility, plus it's a small premium amount that one should actually spend towards his or her health, right? So that in case कुछ भी ऐसी contingency situation आती है, कुछ भी calamity आती है, you have appropriate resort to go for, एक appropriate आपके पास measure है जिसके थ्रू जो है अपनी उस situation को tackle out easily कर सकते हैं. Similarly, if your intent is that you want to go for the education, the government also provide the benefit to you under section 80E कि अगर आप हायर एजुकेशन खुद परस्यू करना चाहते हैं, स्पाउस करना चाहते हैं, चिल्ड्रन करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू द एंटायर बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट, जितना भी आप इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट है, बिकॉज बेसिकली पीपल आर सॉर्ट ऑफ स्केयर्ड कि उनका जितना इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट जा रहा है दैट इज a sort of additional burden on an SSE. So government is doing what? Government is saying कि जितना भी आपने इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है लोन के ऊपर, और अगर आपने लोन एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया है, सो जितना भी पैसा है, सारा एंटायर अमाउंट ऑफ योर इंटरेस्ट विल बी इट विल बी प्रोवाइडेड एज अ डिडक्शन. तो जितना भी आपका ग्रॉस टोटल इनकम होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है आप 80E के अकॉर्डिंगली उसमें डिडक्शन क्लेम करिए. वो सारा अमाउंट जो है आपको अवेलेबल होगा एज डिडक्शन, और जिससे क्या होगा कंपैरेटिव, जिससे आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है इफ यू अवेल द डिडक्शन इट विल गेट रिड्यूस एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके जो टैक्सेस हैं वो भी रिड्यूस होंगे, वो भी कर्टेल डाउन होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी नेट इनकम कम हो रही है. जब ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने डिडक्शन अवेल करी देन यू अराइव एट योर नेट इनकम, एंड जब नेट इनकम कम हो गई तो दैट मीन्स योर टैक्स लायबिलिटी वुड बी रिड्यूस. सो यू वुड सी हियर द इंटेंट इज टू प्रमोट थ्रू ऑल these sections that we discussed today. The intent of the government is to promote the savings, to promote the education, to promote the health, to promote the electric vehicles, so that this entire problem of your even pollution that is due to a number of, you could say, vehicles which are there onto the roads, so through electric vehicles that problem is also curtailed down. So basically when we talk about these reduction, the intent is your social welfare or the social development of the society, along with making sure that individuals are saving a bit of their income towards the good investment channels, so that they are able to inculcate that habit of savings amongst them. राइट ये ना हो कि वो सारा अमाउंट उनका एक्सपेंडिचर में चला जाए. इससे क्या होगा, उनको एक सॉर्ट ऑफ, अगर आप इफ यू नो कि अगर मैं 1,50,000 रुपीज जो है अपना सेव आउट करती हूँ, PPF में डालती हूँ या मैं LIC लेती हूँ, सो उससे क्या होगा, मेरी नेट इनकम जो है वो रिड्यूस होगी, मुझे उतना ही टैक्स जो है कम देना पड़ेगा. सो दीज आर द डिफरेंट, यू कुड से, मेथड्स. दीज रिडक्शंस आर नथिंग बट दीज आर द डिफरेंट मेजर्स जिसके थ्रू आप टैक्स को प्लान कर सकते हैं. टैक्स प्लानिंग करना is always legal, it is always advisable, and this is done through availing the benefits which are given under your different sections. And these benefits which run from 80C to 80U, जो coming sections भी आएंगे, 80TTA, 80TTB भी हम करेंगे आगे further on, 80G with respect to your donations, then your 80U also with respect to again the disability. Then these sections, all these sections are basically meant for the individuals, so that they they sort of provide you could say an aid to the individuals in planning out their income. And that is why, and one important thing with respect to the same, ये deductions ऐसे नहीं है कि आपने किसी भी साल सेव करी और उसका बेनिफिट आप किसी भी साल ले सकते हैं. अगर अभी मेरा प्रेजेंट ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2023 से a न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज स्टार्टेड, सो जितना भी इन्वेस्टमेंट
जितना भी सेविंग्स, जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड या लोन लिया है मैंने इस टाइम पीरियड में, राइट, तो इस टाइम पीरियड में जितना भी मैंने अवेल करा है, तो जब मैं नेक्स्ट ईयर जुलाई में अपनी रिटर्न फाइल करूंगी तब इन डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकती हूँ. सो जो डिडक्शंस आपने जिस पर्टिकुलर आपको तभी बेनिफिट मिलेगा अगर आपने उससे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो है इन्वेस्टमेंट करी है. अगर मेरा प्रीवियस ईयर कोई 2015-16 से रिलेटेड है, सो उससे रिलेटेड जो बेनिफिट है मैं आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं अवेल कर सकती हूँ. मैं जो अवेल कर सकती हूँ वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की ही डिडक्शंस को अवेल कर सकती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट no other deduction is no other you could say कि deduction can be availed which pertains to the earlier years. So it has to pertain to the relevant previous year. So 1 अप्रैल 2023 से लेकर आप 31 मार्च 2024 तक जो है जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, जो भी सेव करेंगे उसकी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं जब आप नेक्स्ट ईयर अपने नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 24-25 की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे. ठीक है. Another point is I would also suggest that one should go for taking benefit of all these deductions, but again it is your choice. You can select कि आपको इस 80C या 80U तक जो आपकी डिडक्शंस हैं, बिकॉज दीज डिडक्शंस का बेनिफिट इज अवेलेबल अंडर योर ओल्ड टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर. अगर हम न्यू रिजीम स्ट्रक्चर देखें जिसे हम ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके अंदर वी आर नॉट हैविंग द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज deductions which are available. So what happens out, that is left by the government onto your own wisdom कि आप चाहें, ठीक है, तो आप डिडक्शंस का अवेल करें, बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर के अंदर आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं. Otherwise, if you don't want to, invest into these specific products, अगर आप इन specific products में नहीं सेव करना चाहते हैं, जैसे मैंने ATC के एग्जांपल दिया कि PPF है या आपका LIC है, अगर आप इसके अलावा किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कई भी गवर्नमेंट की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, गवर्नमेंट के क्या कितने बैंक्स के आजकल SIPs हैं, कितने म्यूचुअल फंड्स हैं, मार्केट्स हैं, जहां पर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज ऑन टू योर विजडम, तो आप उसका बेनिफिट नहीं लीजिए और आप ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं. सो बेसिकली इट इज द कॉल ऑफ द असेसी, इट इज हिज और हर विजडम कि वो डिडक्शंस को ओल्ड टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर के अंदर ऑप्ट इन करना चाहता है या उसका बेनिफिट लेना चाहता है, या फिर किसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या डिफरेंट प्लान्स हो सेविंग्स के या इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो रियल एस्टेट ही क्यों ना हो, राइट, अगर वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है दैट इज हिज और हर चॉइस, और वो जा सकता है ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर के लिए. सो बेसिकली दोनों ऑप्शंस गवर्नमेंट के थ्रू फ्लोटेड है एंड इट इज द चॉइस, इट इज द कॉल, इट इज द विजडम ऑफ एन इंडिविजुअल. वो अच्छे से केयरफुली रीड करें, किसी भी स्कीम को ऑप्ट इन करने से पहले किसी भी पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्ट ना करें. नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट दिस यू मीट पीपल और यू सी एडवर्टीजमेंट जहाँ ये कहा जाता है कि इतना पैसा इतने सालों में डबल कर दिया जाएगा या इतने आपको रिटर्न इतना टाइम मिल जाएगा. यू नो दैट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू ग्रो. दैट इज वाई वेदर आई टॉक अबाउट दिस PPF or LIC, they are having a long period because the returns cannot be assured in a shorter run period, except even the market also runs onto that your मैट्रिक्स ऑफ योर रिस्क एंड रिटर्न. तो जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क का एपेटाइट कितना है. डिपेंडिंग ऑन टू द सेम आप अपने सेविंग्स प्रोडक्ट्स या इन्वेस्टमेंट चैनल्स को चूज इन कर सकते हैं. रिस्क बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने मैंडेट नहीं करा है कि आपको एक ही टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर है, रेदर गवर्नमेंट ने कहा आपके पास ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर है जहां पे आप इन डिडक्शंस का बेनिफिट ना लीजिए, आप दूसरा टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर दूसरे टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंगली अपनी जो है आपकी टैक्सेबिलिटी आएगी. एंड देन इट इज योर कॉल कि आप जिस भी प्रोडक्ट्स में चाहें आप सेव करें. आपको रियल एस्टेट में सेव करना है, आपको लग रहा है कि बेटर रिटर्न्स आपको वहां मिलेगी, देन ऑल्सो, बट ऑलवेज मेक श्योर कि टू सेव अ सेगमेंट ऑफ योर सैलरी towards some financial products और जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, आप चाहें तो स्टॉक मार्केट में सेव करें, रियल एस्टेट में करें, ETFs में करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करें, पोस्ट ऑफिसेज में करें, राइट, बट चूज wisely, carefully. Do not fall for any Ponzi schemes जो आपको allure करें,
जो आपको टेम्प्ट करें कि आप जो है कुछ ऐसा आप ऑप्ट इन कर लें बाय चांस जिसमें वो आपको श्योर करें कि आपको डबल मिलेगा. बट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नथिंग लाइक getting twice the amount in just 2 years or just 3 years. Not even the market assures you. Nobody guarantees the same. So choose carefully, wisely, right? So ध्यान से देखकर समझकर फिर आप उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करिए. बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का देयर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन हर एक चीज के रिगार्डिंग इट इज अवेलेबल ऑन टू द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ऑन द बैंक्स वेबसाइट. सो केयरफुली रीड देम before investing, right? So that's it for the day. We'll be continuing the another set of your deduction in the upcoming sessions. So thank you very much.